evening, all of you. Thank you for joining. Thank you. Am I audible? My loudest. I'm audible now. Kiran sir. Hello. Yeah. Thank you. Thank you for joining. Thank you. Oh, first of all, thank you for joining today's. As a host, I can say that thank you for joining on time. Anita ma'am, Kiran sir, thank you for this. I'm going to give some more about the today's background about what I'm going to share now. Let me start sharing the things which I'm supposed to explain today. And uh, आप ही की तरह एक बरकट्टा हूँ। सबको एक दूसरे की मदद करनी होगी ताकि हौसला कमजोर ना पड़े। हम साथ चले तो जीतेंगे, हाथ में हाथ चले तो जीतेंगे, जीतेंगे सारे दावे सारे वादे जीतेंगे, जीतेंगे दिल के ये मजबूत इरादे जीतेंगे, साथ चले तो जीतेंगे, हाथ में हाथ चले तो जीतेंगे। अरे जब जान गए हैं कि बचना मुश्किल है तो ऐसा ही जान दे दे बिना लड़े। तुम और मैं अगर हम हो जाएं तो ही बस हम जीतेंगे, वरना जीते भी तो अंदर अंदर बस गम जीतेंगे। तो हाथ छोड़ना मत, जज्बात तोड़ना मत, हम तूफानों में बनके औलाद चले तो जीतेंगे, साथ चले तो जीतेंगे, हाथ में हाथ चले तो जीतेंगे। दावा है जीतेंगे, वादा है जीतेंगे, हर पर्वत को दिक्कत को तोड़ेंगे, अपनों से अपनों को जोड़ेंगे, हम तूफानों में बनके औलाद। this thing, I think everybody should connect with this. And I think I should start my presentation based on whatever is I have created for. First of all, welcome to all of you. And this is the presentation which I have. It is not a sort of a presentation, but it is a basically my own experience of whatever I have experienced in my life, and based on my overall learnings from the different people, different community members. So these today I started. I'm going to start it with wealth being blueprint. This is one of the topic on which I am going to give some information. You can say information, my own experience. You can say a blueprint, which will definitely going to help all of us for this. You can see the heading as such is showing build multiple income stream of and achieve the financial freedom. Means most of the people they always think that financial freedom. What is financial freedom? How we can achieve the financial freedom? So once again, I am welcoming all of you with my gratitude and all the things. Whatever we are going to learn today, it's a practical experience of my own life experience and some of the teaching which I'm learning from last 3 years. And if you see the area which we are working, particularly, this is a freedom parent. So I'm going to start with the age from 25 to 45, which is generally people are in distraction, people are lack of confidence, then inefficiency, stress, fatigue, overall thinking, and stigma.
So most of the people are going through this only, and I'm sure that आप भी इसी में से गए होगे जब आप 25 या 45 साल के होगे, क्योंकि मैंने मेरे अपने करियर में देखा है कि ये स्टेज हर एक के लाइफ में आता है, और ये लाइफ के जहाँ स्टेज फेस करने के लिए कुछ आपको वर्किंग करना पड़ता है, या फिर पहले प्लानिंग करना पड़ता है, या फिर यू नीड टू वर्क ऑन वॉट एवर इज बेस्ट यू कैन डू इट. So for that, as you have already listened, आपने सुना होगा जीतेंगे. That is my tagline. जीतेंगे is nothing but जीत means your winning attitude first of all, and eng means you should keep always yourself engaged as such. So that is the reason this tagline I have started, and what we are going to work on. So people say that financial freedom, but only financial freedom is not going to give you freedom as such, and the satisfaction, happy life you can say. There are 4 areas on which it's my strong belief that freedom is nothing but a family freedom. Means your time, आप जो टाइम आपको फैमिली को देने चाहते हैं, फ्रेंड्स के साथ में आप एंजॉय करना चाहते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम इज ऑल्सो फ्रीडम. Then we will come to know that whatever is there in our life, and that is the reason last year only I started this financial freedom parent hub, which is my community, and I think everybody should listen to this Ashish Vidyarthi. He is one of my favorite actor. Most of the people know this, and just connect it whatever he is saying, and just relate it. So I can say I am a good great fan of Ashish Vidyarthi, and whatever his videos are there, I can also relate. Most people there we can relate it. Before starting this video, I am going to discuss about the 2 areas of our life. Means आप अगर 25 से 45 तक हो, और आपका सेकेंड एज स्टार्ट होता है 46 से लेके आगे 60, 70, 80, whatever life you are doing. Are you agree with this? If you are agree, if you are connecting with this, please type to this chat box so that I can understand and I can connect it with you, all of you. So I think everybody is going through this live also. I am requesting, it is not a big video. This is a small 2 minutes, 3 minutes video. Just listen to it and give me whatever your action is and whatever you feel about it in the chat box. Are you relating with this? Just listen, please. I am requesting. One thing. बच्चे बड़े हो गए हैं, मैं कौन हूं? देखिए, घर का साइज ना वही होता है, पर उस घर में जो आवाजें पहले होती थी अब. Sound is clear? Let me know the chat box so that I can continue. बदल चुकी है. आज की बात उस बदलती आवाज के नाम. नमस्कार, मैं हूं आशीष विद्यार्थी और मैं करने आया हूं आपसे जिंदगी की कुछ बातें. देखिए, एक वक्त तक हम सबकी जिंदगी ना बच्चों के कैलेंडर के हिसाब से चलती है ना. उनका स्कूल टाइमिंग, उनके ट्यूशन के टाइम, एग्जाम, कब बाहर जा सकते हैं हम, कब नहीं जा सकते, एवरीथिंग डिपेंडेंट ऑन दैट. और फिर अचानक एक दिन वो कैलेंडर खाली हो जाता है क्योंकि वो जा चुके हैं, अब आसपास नहीं है. अब देखिए, बच्चा तो अपनी जिंदगी में जा चुका है और जब वो जा चुका होता है तब हम पहली बार पूछते हैं, अब मैं क्या करूं? मैं तो जी रहा था तुम्हारे लिए, अब तुम चले गए. इसको लोग एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम भी कहते हैं. ये पहले भी हुआ है, अब भी हो रहा है और होता भी रहेगा. क्योंकि एक बात समझना बहुत जरूरी है, ये पेरेंट्स, मां बाप बनना एक रोल है, बहुत प्यारा रोल है.
पर उस रोल की जो स्टाइल है ना वो बदलता रहता है। इनफैक्ट हमको लगता है कि वो रोल खत्म हो जाता है, और जब वो रोल खत्म हो जाता है, क्योंकि अब ऑन अ डेली बेसिस बच्चों को आपकी जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि वो जा चुका है दूर, अब लगता है कि मैं तो खत्म हो गया, मेरी कोई रीजन ही नहीं है, इसी के लिए तो मैं जी रहा था, इसी के लिए तो मैं जी रही थी, इतना कुछ कर रही थी, इतना कुछ कर रहा था, अब मैं क्या करूं। और तब हम एक बात भूल जाते हैं, अरे भाई आपकी जिंदगी में और भी बहुत कुछ है। ये अब तक एक रोल था, जिंदगी का एक रोल जो आपने अब तक निभाया इन सब जरूरतों को पूरा करने के लिए, लेकिन अब इसके आगे क्या? क्योंकि उस बिजीनेस से हम इतने आदी हो चुके होते हैं, इस फेज में बहुत सारे लोग इंक्लूडिंग मी लोनलीनेस फेस करते हैं। लेकिन मैंने अपने आप को समझाया कि लोनलीनेस का मतलब वो अकेलेपन का मतलब दुख नहीं है। कई बार ये जो अकेलापन होता है, ये जो लोनलीनेस होता है, जब एक पूरा लाइफ का टाइम खाली हो गया है, ये एक इनवाइट भी हो सकता है जहां पर आप अपनी जिंदगी को और एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक उसी तरीके से जैसे आपका बच्चा कर रहा है। बंधु, मां बाप मतलब ये नहीं कि एक ही तरह का रोल, मां बाप मतलब एक जीवंत इंसान जो अपने आप को इवॉल्व कर रहा है, ठीक उसी तरीके से जैसे आपका बच्चा हुआ है। तो ये जो नया फेज है, ये भी आपका उतना ही है जितना पहले वाला फेज था, इसलिए उसको भी खुल के खेलिए और याद रखिए आपकी जिम्मेदारी अब आपकी तरफ ही है। तो अपनी जिम्मेदारी को पहचानना बड़ा जरूरी है मेरे दोस्त। तो इसलिए आज रात अगर आपको लग रहा है कि आप थोड़े गायब हो गए हैं, जिंदगी में जरूरत नहीं है, तो याद रखिए ये गायब होने का मतलब ये है कि आप फ्री हैं, आप कुछ और भी कर सकते हैं। और जब आप ऐसा मान लो कि आप कुछ और कर सकते हैं, तो मैं यकीनन बता रहा हूं आपको, कुछ भी संभव है। जिंदगी के हर फेज में कुछ चीजें छिन जाती हैं, पर बहुत सारी और चीजें मिलती हैं। इसलिए उम्मीद रखिए खुद से मेरे दोस्त, क्योंकि जब आप खुश होंगे आपके बच्चे भी खुश होंगे। तो रहे हैं? तो आज की शाम बस इतना ही। अगर आज थोड़ा सा आपको अपना नाम याद आया हो, अपनी जरूरतों के बारे में थोड़ा सा सोचने का मौका मिला हो, तो समझ लेना कि ये फेज की शुरुआत है जहां पर आप अपने नए आयामों को डिस्कवर करने के लिए तैयार हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे शेयर करिएगा दूसरों के साथ, और अपने कमेंट्स में जरूर बताइएगा और किन बातों पर चाहते हैं कि मैं बात करूं। गुड नाइट, शब खैर। Thank you. Thank you for listening patiently. I think this is particularly video about the senior citizen, but it is not senior citizen, and I think everybody maybe in a span of life they are facing the same issue. Some of the parents are facing the same issue, but this particularly for the senior citizens, those people are retired or about to retire. So this is the starting point, and I'm so sure that everybody is thinking and understanding what he is supposed to say as a person. So let's start to the topic. Before starting the topic, I think I can बच्चे बड़े हो गए हैं, start it.
with the thing which I think everybody should get it. And I'm requesting all of you to just be there till the last time. So I'm going to give you a one-to-one call with me for the particular exercise which those people, those who are wants to work with me for the lifelong, because this is the lifelong. I'm not going to give it first only for few days. This is the lifetime support which will get it. And the intention of this Freedom Parent Hub, I want all the parents of a hub. Means आपने अगर सोचा होगा what is hub? Hub अगर आपको देखा होगा तो आपने these are the principles on which we are working. Hub is a simple. If you know the cycle, cycle के बीच में जो part होता है, that is hub. And all the spokes means all the event happens in the life. That is the, and people is the center. As a parent, you are the center of the hub. The cycle is the चक्कर का जो cycle होता है उसमें. And all the spokes are supposed to be, I strongly believe that are the events happen to your life and the emotional parts of your life. In well-being, I can say that there are 8 areas of life which we need to work on. Everybody is working on that 8 areas of life. So let me explain the code of honor which we are following in the parent of hub, parental hub, and we as a freedom parent hub, as a community, what we are. We should be clarity. Means clarity should be a first principle. Means whatever you want to achieve, you should know it and you should do it preciously, continuously. आपने करना चाहिए. And you should take a ownership of whatever you want to achieve in your life. Take a full responsibility of what you want for whatever results you want. Take a ownership. Don't blame anybody that because of him he is not there. Look at whatever action you have taken. Believe me, I strongly believe that whatever is you are today because of your actions which you have taken till now. That is the belief, and on which as a hub, as a freedom finisher hub community member, we are working on this. Second, we should take some action speedily, because speed अगर नहीं रहेगा आपका तो आप वो momentum बना नहीं पाओगे. And the accountability part also is also important. आप accountability delivery में every commitment you should be accountable. When it comes to multiple sources of income, which I strongly believe every parent should have at certain age of span, that collaboration should be there and discipline should be there. Financial intelligence means financial knowledge. You should have financial knowledge and consistency also there. And last but not least, integrity. These are the code of honor on which we as a community member, we are working on. And I think everybody is resonate with this code of honor. That is the reason I started this Freedom Parent Hub as a community. So let me start it with the reality check. Means as I already said that you must be having some doubts in your mind that you are earning more, but still you are not free. Most of the people, most of the parents are earning as per their capacity, as per their ability. But in spite of earning much, means मेरे हिसाब से जितने भी आपकी capacity है, उसके हिसाब से जितना भी आप earn करते हो, but sometimes you are not feeling free and you are not happy with the way work is going on. So I am requesting all of you, if you resonate with this, as far as this sentence is concerned, this question is concerned, ask yourself, are you earning well, but still feeling financially insecure? ये क्वेश्चन हर एक के इसमें आता है. और if yes, this session can change your totally perceptive with the seeing the what is finance, what is the wealth, what is the well-being process as such. So it is only the reality is today's reality. Actually, most of the people, I think, they are depending on the single income. In the uncertainty of today's life, there is no financial planning as such, and because of that, the stress, no work-life balance is there. And that is the reason, if you resonate with all these 6 problems, most of the people are facing in their life. So any problem if you are facing, if you are depending on single income, that is also a problem.
currently there is a job certainty, you are worried about it. There is no financial. If you are not planning your finance properly, the problem is there. And because of that, there is a stress, there is no work-life balance. So here I have given this circle. These are the 8 areas. We will explain it in a different fashion one by one. And I'm connecting this with the financial freedom and your blueprint. How it is depending on these all things. So myself is Jitendra Rahul. I'm giving you, with your permission, a short introduction. I'm sales from last 28 years of experience. During my career also, I was continuously helping other people. Professional also, I have helped last from 3 years. I'm in this financial and well-being coach. And family towards a financial freedom. This is my motto and this is my mission. That every parents of the family. And my mission is I want to transfer 1 lakh families to build their financial structure as a. So this is my small introduction. I started with the Jitenge motto and I started with the Parental Hub. I'm associated with the company called the Coverage Force, who is a recruitment company for the insurance people and other people. I am not going to sell anything to you today as an insurance product. I am giving you the alternative ideas, how you can develop the multiple sources of income through various paths. So I have started Humpach with the people, those who are associated and like-minded with me. So I think this is my small introduction. I'm not going to take much time because I want to cover it various things. So this is my overall my Coke career. This is I started career with the Coke now in 2019. I still remember the 2019 is the decision I had taken to go to Kenya, from India to Kenya. During that period, he is my mindset Siddharth Shah. He is a mindset coach. Most of the people knows is Siddharth Rajshekar sir. He is also one of the coach. And I started the Jitenge on the principle of this. So I have taken a leap of faith. From after working in India for 25 years in Coke, I started thinking that this is not a sufficient. During that, I have started multiple sources of income. So I take a leap of faith and started my career again in the Coke, so that I can get some international experience also. I worked there for 5 years. Then I came to across this Sandeep Gupta ji sir. So these are my very journey of Coca-Cola. I was there in Colombo for 4 years, and all of a sudden, during work of research, various things we implemented. Coca-Cola award and all that. This is a small and during this period, I came across all the mentors which I now they are my license coach. And I still remember that 19 the beginning, I still remember I decided to take a leap of faith at the age of 50. Why I am telling you this? Because I have gone through all these things. Everybody has gone through all the maybe the intensity after थोड़ा कम. This is the last celebration I did. And I can say this is I was there. On 10th March. And I have taken a fight on that day only. But March still I remember how I am giving you this general instruction because this is the overall experience of my life. And just to give you the idea about what thank you for listening
main part, which is income part. I think I don't want to explain everybody. It is a self-explanatory. There are 30 passive income, active and passive income chances. And the people, those who are millionaire, they have these seven stream of income which they have working on. Capital gain hai, interest income hai, dividend income hai, profit hai. And that is the reason these people are millionaire. People think that why person is millionaire, there is a reason that they totally depending on multiple sources of income. They don't have any means dependency on the one income as such. So this is the short starting, and you need to ask your questions: how many streams of streams of income do you have? And I'm requesting all of you to write it down, jot it down, the questions which you have. In the last 30 minutes, we are going to discuss question by one. And I think everybody should get the clear picture of what sort of income they should do it, what at what age. Because I strongly believe that there is no tailor made whether in one sentence I cannot say that एक ही आपको फॉर्मूला दूंगा जिसकी वजह से आपका वेल्थ बिल प्रिंट स्टार्ट होगा. यहाँ पे I'm yes guiding people tailor made means if somebody is at different age, I'm giving a different solution for that, and this we are going to definitely discuss it regular. So coming back to the topic and goals which we should have in our life. So again, everybody should have 5 goals in their life. First is children's education, children's wedding, family protection, retirement, wealth creation, and short term. Why I'm saying this? Because if you don't have the goal, आपका अगर कोई लाइफ में गोल नहीं है कि आपको किसके लिए फाइनेंशियल प्लानिंग करना चाहिए, ये प्लानिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि यू विल बी सरप्राइज दैट एट द एज ऑफ 55 you should have minimum 5 to 6 CR net worth. How many of us surprised? आपको कम से कम 5 से 6 करोड़ का एक नेटवर्थ होना चाहिए at the age of 55, sorry 55 when you going to retire. Why I'm telling you? Because and this is awareness sort of a thing, and you can introspect yourself that whether it is necessary to plan these things. Some of the parents, they are at the early age, so they need to start it from the children education, children wedding, family protection, retirement, and all that thing. But those who are at the middle level, they also need to understand what sort of a thing which I think everybody should learn. And for that, for the multiple source of income, there is a triangle of success. I always strongly believe that you should have skill, you should have attitude, and you should have knowledge. When let's understand one by one. When it comes to skill, no, you should have goal setting, time management, resources. We will discuss it in detail whenever people are coming to my inner circle and people are in my community. We are discussing all these things. Each and every individual, I am discussing with everything with the people, those who are there. Attitude, you should have self-motivated. As I discussed with you, code of honor should have this honesty, optimism, all these things we need to work on. Knowledge, basic knowledge of finance, basic theory, information, fact, and what is the government is doing, why it is going to, what it will affect. अभी लेटेस्ट जो ट्रम्प साहब ने जो किया है और मोदी साहब ने जो अभी अनाउंसमेंट किया है, उसकी वजह से भी आपके जो इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट काफी इफेक्ट होता है. ये आपने पहले सोच लेना चाहिए कि यहाँ पे मुझे क्या करना है, ये 3 एंगल पे मुझे कहाँ पे वर्किंग करना है, ताकि ये मेरे लाइफ के जो गोल्स है ये कैसे अचीव हो. If you are resonate, you just type R or you can say agreed. That is the reason this is the call which I am taking 90 minutes. The 90 minutes call, I am trying to cover it as early as possible so that we can do a question answer session. Because for me, question and answer session will give you more clarity about it. Okay.
So if you understand this triangle of success, I think everybody should work on this. You can take a screenshot of triangle of success and the goals of, because when it comes to planning, no, we need to work on these 6 areas of life and the triangle of success. This is the, you can say, assignment which you need to do it, and we will do it together. So once it comes, I'm telling you, Miss, which area you need to cover it. As I already discussed with you that people at the age of 60, they need minimum 4.2 CR to 6 CR, 6.6 CR. And why? There is a calculation. I'm not telling you just for the sake of calculation, but people, those who are at the 40, 30, 25, they need to plan it in a such a way that at the age they should have that much net worth whenever it comes, whenever the situation comes. Means if your children are there, you need to plan it 60 to 70 lakhs of planning होना चाहिए, initial stage में. When it comes to children wedding, you should have 30 to 45 lakhs of planning. When it comes to family protection, medical and other thing, you should have at least 30 lakhs. When it comes to your short term, you should have that much money with I think everybody should keep it there with you. रिटायरमेंट प्लानिंग में आपके पास में कम से कम इतना तो भी फंड चाहिए कि आपको स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो आपका है उसके ऊपर आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ता. आई एम स्ट्रांगली बिलीव दैट आई एम वर्किंग विद द सीनियर सिटीजन ऑल्सो. आई एम वर्किंग विद द पीपल दोज हु आर देयर विद मी फ्रॉम लास्ट 3 years. They should have this much amount. If you see the wealth accumulation, you should always have an extra wealth accumulation plan. And these are the areas, 6 areas. I think everybody should resonate with me. I think everybody should plan it. So this sheet, if you can take a printout at that, and if you want to discuss with me when one-to-one, I can guarantee to you, I will make sure that you people will be a wealthy people. So this sheet is also important. That is the reason I am taking more time on this sheet. Have you taken the screenshot of this? If yes, you can say yes, or you can write it down in the chat box. Yes. I think मेरे ख्याल से इस पे अगर आपने काम कर लिया सर, जितने भी लोगों ने आज ज्वाइन किया है, you will definitely get something good from your session. And I'm going to discuss with this particularly one-to-one with the people, those who will call me after the session. So coming back to the major topic which I always discuss, and which is I'm going to discuss it very well in depth. As I said that there are 8 areas of your life. These 8 areas is the well-being part. Work-life balance बोलो या well-being बोलो या कुछ भी बोलो. आपका करियर के बारे में, आपका फाइनेंस के बारे में, आपका डेवलपमेंट के बारे में, आपके रिलेशनशिप के बारे में. Fun part means how you enjoy the life. Environment means which area you are living, your home, workplace. Spirituality is also one part. Health is also one part. So if you ask me, these are the 8 areas. ये 8 एरिया पे ही आपके अगर ऐसा बोला जाता है कि दिन में मोस्ट प्रोबेबली 65,000 थॉट्स आते हैं. तो 65,000 थॉट्स में आपके यही एरिया के थॉट्स आते हैं, इसके अलावा कोई थॉट्स आपके दिमाग में आते नहीं. यू कैन जॉट इट डाउन. फॉर एग्जाम्पल आपको ट्राई करना है, आप ट्राई करो. आप ये 8 एरियाज लिख लो. मैं एक्सरसाइज दूंगा आपको. ये 8 एरियाज लिख लो. एक दिन का एक्सरसाइज करो और उसको खाली टिक मार्क करो कि मेरा आज करियर के बारे में थॉट आया. आई एम नॉट टेलिंग यू तो 65,000 करो. जनरली मेजरली कहाँ पे आता है? तो ये 8 एरिया पे अगर आपने वर्किंग किया और ये 8 एरिया पे आपका अगर जो एरिया में कम है आपका, whether it is relationship, whether it is career, whether it is health, believe me, if you start working on these 8 areas, one of the areas, the people will be getting all the happiness, all the well-being part of their life, and they can balance it very well. This is tried and tested model. I am not telling you just for the sake of telling, but you also will experience when you join me as a community member.
whenever we discuss about these areas of the detail. Then come back to the wealth. बहुत से लोगों का ये मानना है, मेरा मेरा जब मैं केनिया में जाने के पहले 6-7 साल पहले मेरा भी ये मानना था कि wealth means only finance. But believe me, the people, member of the community, they understand it deeply. There are 4 types of areas. Apart from the financial, there is a social wealth also. Time is also wealth, and health is also wealth. इसमें से आपको 2 पता होगा कि हेल्थ, आपने काफी सुना होगा कि हेल्थ इज वेल्थ, आपने काफी बार सुना होगा कि फाइनेंस इज ऑल्सो वेल्थ. बट व्हेन इट कम्स टू सोशल वेल्थ एंड व्हेन इट कम्स टू टाइम वेल्थ, लेट्स अंडरस्टैंड दिस 2 एरियाज ऑफ आवर लाइफ. क्योंकि फाइनेंशियल वेल्थ के बारे में आपको बोलने की जरूरत नहीं है, हेल्थ के बारे में आपको बोलने की जरूरत नहीं है. यहाँ पे जो 2 एरिया है जिसपे आप जनरली पब्लिक 60-70%, 90% पब्लिक काम नहीं करते, वो दो एरिया है, सोशल वेल्थ एंड टाइम वेल्थ. तो व्हाट इज सोशल वेल्थ? सोशल वेल्थ इज, आप फॉर एग्जांपल आप कौन से एरिया में रहते हो, ऐसा बोला जाता है, मैं बहुत सी बार सुना भी है, यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल सराउंडेड बाई यू. आपके आजू बाजू जो 5 लोग रहते हैं, या जो आप सोशल लोगों को सिलेक्ट करते हो, वो आपका नेचर बनता है. और इसीलिए बोला जाता है कि प्रोफेशनल लाइफ में जो आपका करियर होता है, जो प्रोफेशनल लाइफ में आपको एक्टिविटी करनी होती है, इसी एक्टिविटी की वजह से आपका वो नेचर बन जाता है. आपने अगर माइंडसेट पे काम किया या फिर आपके प्रोफेशनल स्किल पे काम किया, आपने कंपनी बराबर चूज की, आपके आजू बाजू प्रोफेशनल एरिया में लोग रहने वाले हैं, वो उनको अगर प्रॉपरली सिलेक्ट किया, तो योर सोशल वेल्थ इज ऑल्सो गोइंग टू इंप्रूव. अभी सोशल वेल्थ में आते हैं फैमिली, क्लोज फ्रेंड, प्रोफेशनल नेटवर्क एंड लोकल कम्युनिटी. व्हाई इट इज नेसेसरी, यू विल अंडरस्टैंड इट. हाउ इट इज नेसेसरी, वी नीड टू गेट. प्रिकॉशन क्या लेना है? द कनेक्शन मस्ट बी मीनिंगफुल. अ फ्यू जेन्युइन एंड क्लोज रिलेशनशिप बीट्स लॉट्स ऑफ वीकर वन. मीन्स अगर आपने प्रॉपरली लोगों को कनेक्ट किया, प्रॉपर लोगों के साथ रहा है, तो मुझे नहीं लगता आपका सोशल वर्क. और मेरा जो लोगो है, जीत एंगेज, एंगेज एंगेजमेंट. एंगेजमेंट मीन्स राइट फ्रॉम योर चाइल्डहुड अप टू 70-80. मेरा स्ट्रांगली बिलीव है कि आप जिस लोगों के साथ एंगेज रहते हैं, उसके ऊपर आपका लाइफ डिपेंड होता है. अगर आप अच्छे लोगों के साथ एंगेज रहोगे, तो आपका वो लाइफ वैसा रहेगा. अगर आप बुरे लोगों के साथ डिपेंड रहोगे, तो आपका वो लाइफ बुरा रहेगा. So social wealth and selection of your friends, selection of your community is also important. When it comes to time wealth, आप अगर टाइम वेल्थ की बात करोगे, तो मेरा खुद का मैक्सिमम है फ्लेक्सिबल शेड्यूल. आपके पास टाइम है क्या? आपके फैमिली के लिए आपके टाइम है क्या? आपके हॉबीज के लिए आपके पास टाइम है क्या? ये अवेलेबिलिटी ऑफ स्पॉन्टेनियसनेस, आपके पास जो आता है, वो आपके दिमाग में जो आता है, उसके लिए आपके पास टाइम है क्या? तो टाइम मैनेजमेंट इज ऑल्सो वेल्थ. There are techniques still. I can teach you. My community is teaching from me. आप ओवरऑल कैसे रहते हो, कैसे टाइम ये स्पेंड करते हैं, उसके ऊपर डिपेंड. तो व्हेन इट कम्स टू वेल्थ, नो, वेल्थ बी blueprint is depending on this area. I will give you a solution how to do the multiple sources of income, how to do that activity. I have the multiple tools which we can work it on. मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम में कौन से एरिया में अपने पहले स्लाइड में देखा है. देयर आर 30 एरियाज ऑन विच यू नीड टू मल्टीपल इंक्रीज योर मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम. देयर आर 7 एरियाज वेल्थ which we discussed in first slide. If you start working on that area, definitely you are going to get it. So this slide and previous slide is very important slide for all of you to understand. So आप बोलोगे कि क्या इसके क्या कनेक्शन है, वेलबींग और जो आपका 4 टाइप का वेल्थ है, इसमें क्या कनेक्शन? सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द कनेक्शन. आपका हेल्थ अगर अच्छा है, तो आप एंजॉय करोगे आपका हेल्थी लाइफ. आपका अगर फाइनेंस अच्छा है, आपको क्वेश्चन पूछना चाहिए, डू यू हैव सफिशिएंट फाइनेंस, व्हिच वी डिस्कस. मींस
मेरा जब रिटायरमेंट का टाइम आएगा, मेरा जब 55-60 का टाइम आ गया, तो मेरे पास उतना नेटवर्क है क्या कि जिसमें मैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में कॉम्प्रोमाइज ना करते हुए मेरा लाइफ चलेगा। आपके पास एनवायरनमेंट कैसा है, वर्क लाइफ बैलेंस कैसा है, आप आपके हिसाब से टाइम कर सकते हो क्या, आपके आपके हिसाब से आप टाइम स्पेंड कर सकते हो क्या। सो एंड वन मीन्स आप सही में आपका टाइम सही में एंजॉय करते हो क्या, वॉट एवर टाइम यू है। आपके पास अगर 12 घंटे है दिन के, जो पीरियड में वर्किंग आवर होते हैं, उसमें आप टाइम कैसे स्पेंड करते हैं, वो इम्पोर्टेंट। तो मेरा अपना मानना है कि ये जो 4 वेल्थ है आपको अचीव करना है, जिसके थ्रू आप बाकी के 4 एरिया में सक्सेस हो सकते हैं। अगेन आई एम टेलिंग यू, रिपीट, द ब्लूप्रिंट स्टार्ट फ्रॉम जीरो। आपको ये 4 एरिया के पहले बैलेंस करना है, विच विल अफेक्ट यू द अदर 4 एरियाज ऑफ लाइफ। और वो कैसा है, समझेंगे। अगर ये आपको समझ में आ गया होगा तो चैट बॉक्स में लिखिए यस अंडरस्टूड। अगर आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर, थैंक यू। अगर आपको ये क्लियर होगा कि किस हिसाब से यहाँ पे कनेक्शन है, वी विल डिस्कस इट इन नेक्स्ट स्लाइड ऑन दिस। बट ये 4 एरिया और ये 8 एरिया, उसका कनेक्शन अपन नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। आई एम टेलिंग यू वेलबींग, वेल्थी बीइंग क्या होता है। ये 4 एरिया पे अगर आपने काम किया, टाइम, हेल्थ, फाइनेंस, सोशल, यू विल दिस रिलेशनशिप, प्रोफेशनल, स्पिरिचुअलिटी और डेवलपमेंट पार्ट, इट विल ऑटोमेटिकली गेट बैलेंस। तो आपने ये 4 एरिया पे वहाँ काम करना है, आपके ये 4 एरिया ऑटोमेटिक रिलेशन, प्रोफेशनल लाइफ बराबर होगा। क्योंकि आपने टाइम मैनेज किया तो आपको प्रोफेशनल लाइफ में बराबर सक्सेस होगा। आपके रिलेशनशिप में आप प्रॉपर टाइम दे सकोगे, आपका ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए आप टाइम निकाल के आपके स्किल डेवलपमेंट पे कर सकोगे। आपका फाइनेंस अगर आपने मैनेज कर लिया तो ये बाकी एरिया पे भी आप टाइम दे सकोगे। आपने आपका हेल्थ अगर टाइम दे दिया तो आपके रिलेशनशिप, प्रोफेशनल में, डेवलपमेंट लेवल पे भी आप कर सकते। और आपका सोशल अगर रहेगा, सोशल में आपको जैसे पहले बताया कि आपका फैमिली, आपका फ्रेंड सर्कल, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो। सो ब्लूप्रिंट का ये 8 एरिया, जिसमें मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में अगर बता जाऊँ तो ये 8 एरिया का इफेक्ट, ये चार चार 8 एरिया पे वर्किंग करने की जरूरत नहीं, आपको खाली ये 4 एरिया जो है, कौन सा 4 एरिया, वेल्थ एरिया, इस पे आप काम करो तो इसका इफेक्ट बरोबर इस पे आएगा। इस पे कम काम करना पड़ता है, पर ये अगर मैनेज हो गया ये 4, तो ये ऑटोमेटिकली मैनेज। तो मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम कैसा होना चाहिए, इसके मेरे पास एक ब्लूप्रिंट है ऑलरेडी, which if somebody is ready to accept this as 1-to-1 जब रहेगा, तो मैं ये शीट आपको जो आखिरी तक रहेगी उनको ये शीट में मेल कर दूंगा या फिर व्हाट्सएप कर दूंगा और फिर कर दूंगा। तो उसमें फर्स्ट स्टेज होता है आपका डिस्कवरी स्टेज, सेकंड होता है फाउंडेशन स्टेज, थर्ड होता है बिल्डिंग एक्सेलेशन स्टेज, फोर्थ है ग्रोथ, लीगेसी, आपको लीगेसी के बनाने हैं। तो ये हर एक के लाइफ में ये 5 स्टेजेस है। ये 5 स्टेजेस पे आपके पास इनकम सोर्सेज कौन से होने चाहिए, ये आपको ढूंढना है। अगर आप नहीं रहोगे तो उसको आपको चेंज करना पड़ेगा, अगर नहीं है जो है उस पर आपको बढ़ाना पड़ेगा। ये चीजें सीखने के लिए, क्योंकि इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू कवर दिस इन 60 मिनट्स। तो वॉट एवर टाइम आई हैव, if you complete this, if you join me as a community member in Freedom Parent Hub, definitely you will get all this information which I am going to share it one by one. For example, अगर मैं लास्ट की बात करूँ, लेगेसी एंड फ्रीडम स्टेज, आपके पास क्या क्या होना चाहिए, आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर होनी चाहिए, बॉन्ड्स होने चाहिए आपके पास, रॉयल्टीज आनी चाहिए, और आपका पर्पस ड्रिवन इनकम सोर्स है। लेगेसी और फ्रीडम स्टेज आपको करना है। It will give you impact, inspire, and create the lasting impact on your next generation. This is also going to help the next generation also. अगर आपने ऐसा बना के रखा है, एक सिस्टम बना के रखा है जिसकी वजह से आपको आप हैंड ओवर कर दोगे। मेरे जी का बहुत से फ्रेंड है जिन्होंने ऐसे सिस्टम बना के रखा है कि उनके जनरेशन के बाद में भी नेक्स्ट जनरेशन को उसको कंटिन्यू करना है। मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम, ऐसा नहीं कि एक ही सोर्स है, एक ही दुकान लगाया है, ऐसा नहीं।
उसको टाइम ही नहीं उतना कि वो नेक्स्ट जन में बाकी चीजों के बारे में सोचे, उसी में वो करते रहे। तो दिस आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू द मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम एंड स्टेजेस ऑफ द इनकम। आपके हर के स्टेज लाइफ में आपको क्या क्या करना है, आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू till if you are there with me till in the end, and let's understand question answer session में आप हम ये पूरा डिस्कस करें। तो what is the जीतेंगे फॉर्मूला? Again I am telling you जीतेंगे फॉर्मूला, 90% of the people they are on the one salary, जॉब रिस्की है, राइजिंग इन्फ्लेशन है, रिटायरमेंट का फियर है, ये सब होने के बाद में भी वो एक सिंगल इनकम पे डिपेंड। तो जीतेंगे फॉर्मूला क्या बोलता है, आपने ये शीट जॉट डाउन करके रखी है, जे फॉर जर्नी ऑफ लाइफ, तो आपका रोड मैप क्या होना चाहिए, फाइनेंशियल रोड मैप क्या होना चाहिए, आप कहाँ पे हो, आप कितने नेटवर्क पे हो, और आपको कहाँ पे जाना, राइट। इमोशनल बैलेंस में आपको मनी का माइंडसेट क्या है, मैंने आपको जैसे बताया, मेरे मेंटर थे लॉरेंस करके, इंटरनेशनल लेवल पे, उनका एमएमआई करके एक ये होता है, वहाँ पे मैंने मनी माइंडसेट देखा। मनी माइंडसेट 3 दिन सीखा है मैंने। उसका एक ब्लूप्रिंट होता है मनी के बारे में, पैसे के बारे में, कुछ ब्लू आपके बिलीव होते हैं, वो बिलीव के वर्किंग करना पड़ता है। एथिकल वेल्थ क्या होती है, ये अपन हर एक जन से अगर प्रॉपरली काम आपने किया, किसी को नुकसान ना पहुंचते हुए किया, तो दैट मनी दैट वेल्थ विल बी लास्टिंग। टाइम ऑप्टिमाइजेशन कैसा चाहिए, प्रोडक्टिविटी कैसी लानी चाहिए, आपके जो 12 घंटे है वो 12 घंटे में इम्पोर्टेंट कौन से टास्क है, अर्जेंट कौन से टॉप्स है, नेसेसरी कौन से टॉप्स है, इसके ऊपर हर एक के एरिया में काम करना पड़ता है। और मैं जैसे स्टार्टिंग में बताया कि मैं एक सॉल्यूशन नहीं दूंगा, ये इंडिविजुअल वर्किंग है और इंडिविजुअल बेसिस पे वर्किंग कवर होगा। की फॉर अर्निंग स्ट्रेटेजी क्या है, आपको मल्टीपल सोर्सेज का इनकम कैसे बढ़ाना चाहिए। एंड फॉर नर्चर ग्रोथ, आपका स्किल नेटवर्क लेवल पे, स्किल कौन से लेवल पे आपको डिस्कस करना है, डिस्कवर करना है, स्किल क्या डेवलप कर सकते हैं। मेरा स्ट्रांगली बिलीव है कि आप जैसे स्किल, आप एक एक स्किल डेवलप करोगे ना, बिलीव मी, योर मेंटल पावर, योर इमोशनल पावर, इट विल इंक्रीज। आप कुछ नया सीखने जाते हो तो आपका जो ब्रेन है ना, उसकी जो सेल्स एक्टिवेट होते हैं, उसकी वजह से आपका ओवरऑल बैलेंस भी होता है। आप गोल के लिए कैसे करते हैं, क्योंकि आई एम स्पेशलाइज इन गोल सेटिंग एंड गोल अचीविंग। लाइफ में प्लान क्या करना है, उसके डेली रूटीन्स क्या होने चाहिए, आपको ये गोल अचीव करने के लिए माइंडसेट लेवल पे क्या करना है, स्किल सेट लेवल पे क्या काम करना है, इसका ओवरऑल पिक्चर मैं आपको मेरे सेशंस में, मेरे कम्युनिटी में देता हूँ। तो दिस इज जस्ट इंट्रोडक्शन पार्ट व्हाट आई एम डूइंग। की फॉर लेगेसी आपको कैसे क्रिएट करना, लॉन्ग टर्म वेल्थ कैसे क्रिएट करना। So this is the Jitenge formula which will be applicable to each person to person. It depend on person to person. मैं उनके साथ हमेशा बैठता हूँ, मैं उनके साथ गोल सेटिंग करता हूँ। वो गोल सेटिंग के लिए उनको पीरियड, देर इज अ गोल कार्ड सिस्टम, देर इज अ स्ट्रेंजर सीक्रेट वीडियो, देर इज अ सेल्फ इमेज exercise. Self image exercise is nothing but whatever image you have, you need to change it. आप अगर निगेटिव इमेज होगा तो आपको कभी काम नहीं होगा। आपका बारे में, खुद के बारे में अगर निगेटिव इमेज होगा तो यू विल नॉट गोइंग टू अचीव वॉट एवर यू वॉन्ट टू। देर इज अ सेल्फ इमेज एक्सरसाइज विच आई थिंक आई एम गोइंग टू डिस्कवर। सो मैं अगर उसमें से टोटल एरिया से जो मैं बता रहा हूँ, इस पर आपने अगर एक फॉर्मूला में काम किया, फर्स्ट योर फाइनेंशियल ग्रोथ, योर इमोशनल ग्रोथ एंड फैमिली सेफ्टी, ये 3 एरिया पे अगर आपने काम किया, how to build multiple sources of income, how to protect your family from income, and how to create wealth without stress. Without stress to wealth, बहुत से लोग बोलते हो कि पॉसिबल ही नहीं, but it's a tried and tested how you can create wealth. Wealth, again I am saying you, wealth is not only financial freedom. आपको लगता होगा कि फाइनेंस अगर आ गया आपके पास, wealth है, there are so many wealthy people, they are not wealthy, they are financially free.
but they are not wealthy. Human beings are supposed to have a well-being and wealthy being. I am repeating this. We as a human always think about as a human being. Being means क्या होता है? Being का मतलब बहुत से लोगों को पता होगा, पर मैं बताता हूँ. रियल स्टेट में क्या हो, आप प्रेजेंट स्टेट में क्या हो. मैं अगर बीइंग हूँ एज अ ह्यूमन बीइंग, ऐसा बोला जाता है ना, ह्यूमन बीइंग एज अ सोशल बीइंग. लोगों के साथ जाना अच्छा लगता है, लोगों के साथ बात करना अच्छा लगता है, लोगों ने उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, ये बहुत से लोगों को अच्छा लगता है. यू गेटिंग? तो ये 3 एरिया पे ये जीतेंगे के फॉर्मेट में. फाइनेंशियल ग्रोथ पे, मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम पे काम कैसे कर सकते हैं, कंपाउंडिंग कैसे कर सकते हैं, उसके ऊपर काम करेंगे. इमोशनल स्टेबिलिटी कैसे ला सकते हैं, बिकॉज emotion is, one of my mentor is always saying that your energy in motion is your emotion. I'm repeating it. Your whatever energy you are with, whether it is positive or negative, your emotion, energy in motion is your emotion. वो स्टेबिलिटी कैसे लानी, आपको इस पे मास्टरी कैसे लानी, ये सीखनी. और लास्ट बट नॉट लीस्ट, योर फाइनेंशियल सिक्योरिटी कैसे लाना चाहिए, इस पे हम काम करें. प्रोटेक्ट वॉट एवर यू हैव, फैमिली के साथ में फ्यूचर पे, इस पे हम काम करते हैं. सो दिस इज, वी आर गोइंग टू लर्न दिस with me as a you can say a member of the hub, parent hub. और यहाँ पे मेरा कोई बेचने का इरादा नहीं है. मेरा मिशन है कि पेरेंट्स एक साथ में आए सब्जेक्ट, और मेरे साथ में अपन टुगेदर वी विल वर्क ऑन दैट. टुगेदर वी विल बिल्ड अ कम्युनिटी, कोलैबोरेशन करके, या फिर आपके पास कुछ स्किल होगा तो स्किल के हिसाब से स्टोर डेवलप करके, कोर्सेज डेवलप करके, बहुत सी चीजें हैं जो कर सकते हैं. मेरे में जो स्ट्रेंथ होगा पॉसिबल नहीं है कि आप में होगा, आप में जो होगा तो पॉसिबिलिटी नहीं मेरे में होगा. तो जो बॉन्डिंग करके, जो हब क्रिएट करके, सब पेरेंट्स लोग एट एनी एज वी कैन क्रिएट दिस एज अ हब, दैट इज द इंटेंशन आई एम वर्किंग. Believe me, if I can do it, you also can do it. At this age, if I can do it, if you are at early age, you are going to do it definitely. So this is the formula of wealth, being and wealth. I'm going to give you each and every strictly one by one area, one simple thing, and the strategy you will get it finally. So we will I will give you blueprint of the build wealth without losing any life wealth. So my total freedom is nothing, only wealth. मुझे पता है कि खाली वेल्थ से फ्रीडम नहीं आएगा या फिर हैप्पीनेस नहीं आएगा, उसको जोड़ना पड़ेगा आपको वेलबींग. तभी आप वो अचीव कर पाओगे, और तभी एक स्टेज पे आप पहुंचोगे जो स्टेज पे आप हर एक आदमी जाना चाहते. आप बच्चे से लेके, आप अगर ऑब्जर्व करोगे, बच्चों का कंपनी एंजॉय करते. दैट इज द रीजन एंगेज इज यंग एज के साथ में एंगेज होना चाहिए. आपका लाइक माइंडेड लोगों के साथ में, आपने लाइक माइंडेड लोगों के साथ एंगेज होना चाहिए. और आपका जीत का मीन्स विनिंग एटीट्यूड, दैट इज द जीतेंगे मोड. तो आपके एटीट्यूड पे काम करना है, या फिर आपके सोशल एरिया पे काम करना है, या आपके ओवरऑल एरिया पे काम करना है, दैट वी आर गोइंग टू डिसाइड. एंड बिलीव मी, देयर आर टू मेनी एग्जांपल, देयर आर सो मेनी एग्जांपल. मैं जब केनिया में था, मैंने इसी फॉर्मूले पे काम किया लोगों के साथ. मैं जब इंडिया में था तो मेरे प्रोफेशनल लोगों के साथ इसी एरिया पे काम करता था मैं. और देयर आर मल्टीपल एग्जांपल्स ऑफ रिजल्ट्स व्हिच आई कैन show you whenever we meet in the community. So are we clear till now what is Jitendra? If it is yes, you can unmute and you can say yes, or you can give yes in the chat box. If you are really understand this, then definitely we are going to do it. What is next? Next is nothing but what we are going to discuss about it in a regular basis.
So these are the secret formula which I am again and again discussing with you. तो क्या है आपका वेलबींग का सीक्रेट फॉर्मूला है, इनकम प्रोटेक्शन करना चाहिए, आपने इनकम क्रिएशन करना चाहिए और फाइनेंशियल नॉलेज लेना. So that is the true freedom. और अगेन आई एम रिपीटिंग यू, आपका इनकम वॉट एवर इनकम यू आर अर्निंग, प्रिपेयर दैट प्रिपेयरनेस दैट आपका इनकम प्रोटेक्ट होना चाहिए और आपका इनकम क्रिएशन पे काम होना चाहिए. आपने अगर 5 करोड़ का, 3 करोड़ का, 2 करोड़ का जो आपने बना के रखा है उसको प्रोटेक्ट कैसे करें, उसका एक प्लानिंग. बिकॉज दिस 3 pillars आर गोइंग टू डिस्कस योर वेल्थीनेस और वेलबींग. फाइनेंशियल इंटेलिजेंस में क्या होना चाहिए, स्मार्ट सेविंग होना चाहिए, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, स्मार्ट ग्रोथ होना चाहिए. व्हेन इट कम्स टू इनकम प्रोटेक्शन क्या होना चाहिए, आपके पास इंश्योरेंस का प्लानिंग होना चाहिए, रिस्क इमरजेंसी फंड होना चाहिए. वॉट एवर मनी यू हैव, यू नीड टू वर्क ऑन दिस 3 area of your life. This is strongly, I am strongly believe in this. इनकम क्रिएशन और क्या होना चाहिए, मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम आपका. Again and again I am telling you multiple sources. This is a tried and tested model. Those people, those who are working on their multiple sources of income, they are today enjoying their life. Simple. Period. This is what I am going to discuss one by one. When it comes to other areas, and that is the reason I started this parent hub areas. I think everybody should understand it and everybody should get it. I am giving you a simple example. एक इंश्योरेंस कंपनी के लिए इंडिया में काफी अपॉर्चुनिटी. आई एम नॉट टेलिंग यू टू गो फॉर द इंश्योरेंस, आई एम जस्ट गिविंग यू वन एग्जांपल ऑफ. अभी स्कोप काफी है, अपॉर्चुनिटी काफी है. 9% पेनिट्रेशन है इंडिया में खाली फिलहाल, ओनली 9%. और वो ये इंडस्ट्री है जो इंडस्ट्री 30% ग्रोथ से कंटिन्यू ग्रो हो ईयर बाय ईयर. और यहाँ पे अभी गवर्नमेंट का भी सपोर्ट है. गवर्नमेंट का सपोर्ट ये है कि गवर्नमेंट ने एक मिशन बनाया है, जो मिशन में उनको 2047 जब इंडिया को इंडिपेंडेंस 100 ईयर कंप्लीट हो गए, उस टाइम में उनको 100% इंश्योरेंस होना चाहिए. ये मैं एक सोर्सेज बताऊँ, यहाँ पे एक सोर्सेज का जस्ट एग्जाम्पल है जिसमें लो इन्वेस्टमेंट है, जिसमें हाई इनकम पोटेंशियल है, रिकरिंग इनकम है, रिस्पेक्ट है और आपको पर्पस भी. कितना परसेंटेज है, इनकम भी काफी अच्छा है. ये एक सोर्सेज होना चाहिए आपका. ये हो सकता है, ये आप ट्राई कर सकते हो, क्योंकि ये इंडस्ट्री ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्री. आई एम गिविंग यू जस्ट सिंपल एग्जांपल ऑफ द इंश्योरेंस एडवाइजरी सेकंड इनकम. देयर आर मल्टीपल areas which we can work it on, and believe me, those people, those who are working with me, I am giving them the suggestion. They are working on that. They have improved their income. So again, the real people, real transformation for future is first multiple sources of income, happy family life, financial freedom and peace of mind. इसी पे आपको काम करना चाहिए. अभी तक मैंने जितने भी फैमिलीज को इम्पैक्ट किया है, मीन्स मैंने ये स्टार्ट किया था 8-9 साल पहले, ये जीतेंगे एंड ऑल दिस थिंग. मैं जब भी मेरे कलीग के साथ बात करता था तो ये चीज़ों पे मैं बात करता था 6-7 साल पहले. ये फॉर्मूला है. तो अभी तक मैंने 10-1000 लोगों से डिस्कस किया होगा, उनसे बात किया, उनके ऊपर वर्किंग किया और उन्होंने मुझे फीडबैक दिया है कि बहुत सारा इम्पैक्ट उससे हुआ है. सीनियर सिटीजन्स को मैंने काफ़ी सपोर्ट किया है मेरे मेरे करियर में अभी तक के 4 साल के फाइनेंशियल नॉलेज के लिए. जैसा मैंने आपको बताया कि आई वॉज बेसिकली सेल्स पर्सन. सेल्स के साथ साथ कैपेबिलिटी डेवलपमेंट का मुझे किया था. तो कैपेबिलिटी में आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कैपेबिलिटी ऑफ अ पर्सन इन प्रोफेशनल लाइफ. मेरा वो पैशन था पहले से कि जब भी मैं उनको बात करता था, मैं प्रोफेशनल कैपेबिलिटी डेवलपमेंट के साथ साथ उनको फाइनेंशियल कैपेबिलिटी, बिहेवियर कैपेबिलिटी, इमोशनल कैपेबिलिटी, इसके ऊपर काम करता हूँ. क्योंकि आप प्रोफेशनली कितना भी उनको स्किल करो, कितना भी आपको इम्प्रूवमेंट हो, व्हेन इट कम्स टू द पर्सनैलिटी
one of the definition you will understand what is personality. Personality is nothing but the reality of that person. I am repeating this. Whatever reality of that person is the personality of that person. आज कौन सी रियलिटी में वो है, वो उसकी पर्सनालिटी है. ये मेरा स्ट्रांगली बिलीव. मैं अगर आज खुश हूँ तो ये खुश की मेरी पर्सनालिटी है. मैं रियलिटी में आज अगर दुखी हूँ तो मेरी पर्सनालिटी दुखी एरिया की है. मैं अगर रियलिटी में फाइनेंशियली फ्री हूँ तो मैं एज अ पर्सनालिटी एज अ फाइनेंशियल पर्सन. यू कैन टेक इट विथ एनी. आप खुद के साथ चेक कर सकते. एंड दैट इज द रीजन again I am telling you the freedom of, again I am telling you the well-being part. Why I am doing this? Because it's a connected area. और ये connected area ऐसे ही नहीं बने. ये tried out tested मॉडल है, इसके साथ मैंने काम किया है. ये मेरे खुद के लाइफ के एक्सपीरियंस है, ये मेरे कम्युनिटी के लाइफ के एक्सपीरियंस है. एंड आई एम ऑन दैट मिशन हेल्प मिनिमम 1 lakh parents as a person, as a personality, to develop their financial and well-being. So, मेरा स्ट्रेटेजी सेशन जो रहेगा वो 60 मिनट को एक 1-to-1 रहेगा. Those who are interested, they can join my community. उनके साथ में मैं पर्सनल फाइनेंस ब्लूप्रिंट डिस्कस करूँगा. इनकम ग्रोथ, इनकम अभी कौन से लेवल पे है वो लेवल पे करूँगा. एडवाइजरी करियर गाइडेंस मीन्स कोई भी करियर में हो, whether it is sales, whether it is technical, I can guide these people to how to generate. My ultimate aim is to give multiple sources of. मेरे साथ, मैं पूरा एक्सपर्ट नहीं हूँ, मेरे साथ काफी एक्सपर्ट लोग जुड़े हुए हैं. अगर जरूरत पड़ता है वो एक्सपर्ट लोगों का भी गाइडेंस देता हूँ, उनको बताता हूँ कि ये इश्यूज है. We are the member of the Freedom Parent Hub. There are 4 to 5 mentors in different areas. मैं अभी तक दिया है उसमें हार्डली किसी मेंटर की जरूरत पड़ी एक्सेप्ट फिजिकल एंड मेंटल लेवल. बाकी सब जो मैंने अभी तक दिया है लोगों को, जो कम्युनिटी को दिया है, वो मेरे कैलकुलेशंस, मेरे एवरेज, मेरा जो एरियाज है वो एरिया पे जो काम करना है. एंड बिलीव मी, ओनली 100 seats are available. 100 seats available for the people, those who are serious, those who want to do something good as a community, as a Freedom Parent Hub. मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये कम्युनिटी में आप भी कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं. Whether you are from technical background, whether you are from financial background, people need help and guidance. आप यकीन नहीं करोगे सर, जो भी कम्युनिटी मेरे पास मिली, हम सब साथ में मिलकर कोलैबोरेशन करते हैं. पैसे तो अर्न होती ही है, पैसे, money is the byproduct, that is what I do. But the level of understanding, the level of achievement, satisfaction, you will get it. Believe me, you are going to get it in a different direction. मेरे ख्याल से अभी 60 मिनट हुए हैं. Let me finish it in 10 to 20 minutes. If you are ready, just write it down, ready, in 10 minutes, more, maximum 10 minutes. If you are okay with this. We'll finish it in 10 minutes and we will have question answer session on that. Right? Okay. Thank you. Because I don't want to take much time. उसको कैसे डेवलप करना है, दिस इज नॉट वन टाइम सॉल्यूशन. आपके साथ इंटरेक्ट करके, आपके साथ बात करके, आप मेरी कम्युनिटी में आने के बाद में आपको जो बेनिफिट होने वाला है वो बेनिफिट मैं आपको दूंगा. ये कम्युनिटी क्या है, आपको क्या मिलने वाला है, आपको क्या करना है, ये सब मैं आपको उस आखिरी के 10 मिनट में, इफ यू परमिट मी, आई विल टेक मोर 10 मिनट, नो नॉट मोर दैन. ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग. ऑलमोस्ट 1 घंटा मैंने आपसे बात किया है और ये जो सेशन है ये 3 दिन का सेशन है मेरा, क्योंकि हर स्लाइड पे मैं कम से कम 2 घंटा 1.5 घंटा बात करता हूँ. पर दिस इज इंट्रोडक्टरी
फ्री था, जिसके लिए मैंने उसको 60-70 मिनट्स में कवर करने की कोशिश की। मेरे कम्युनिटी मेंबर्स के साथ में, मेरे जो कम्युनिटी में लोग हैं उसके साथ जब मैं वन वन बात करता हूँ, तो ये हर एक स्लाइड पे मैं उनका ट्रैकिंग रखता हूँ। मैं उनके साथ वन टू वन बात करता हूँ। कंसल्टेंसी मेरे 2 दिन की रहती है। एक दिन होता है इनर सर्कल कॉल, सेकेंड होता है प्रैक्टिकल। इनर सर्कल कॉल में मेरे लोग आते हैं, मेरे से बात करते हैं, डिस्कस करते हैं और कम्युनिटी बिल्टअप करते हैं। सेकेंड इसमें प्रैक्टिकल में मेरे स्लॉट फिक्स होते हैं, वो स्लॉट के हिसाब से मैं वन टू वन सोल्यूशन देता हूँ। मेरे मैं दो दो ही एग्जांपल दूंगा आपको, और ये मेरे 2 एग्जांपल मैं हर सेशन में देता हूँ। एक थे मेरे अपने रिलेटिव, मेरा अपना सगा छोटा भाई, जो कि मेरी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हमारा संभाल रहा था। जो मैं केनिया में था, पूरी प्रॉपर्टी डेवलप कर रहा था। उसने फाइनेंशियल प्रॉपरली प्लान किया था, वो फाइनेंस में एकदम पक्का था, उसको पता था। उसने जो नेटवर्क बना के रखा था वो बना के रखा था। पर उसने इंश्योरेंस की तरफ, मैं अब आई एम गिविंग यू सिंपल एग्जांपल ऑफ माय ओन यंगर ब्रदर, इंश्योरेंस की तरफ उसका देखने का तरीका गलत, तरह गलत नहीं था, उसका परसेप्शन अलग था। मैं गलत तो सही नहीं बोलूंगा, उसको बेचारे को जितना नॉलेज था उतना नॉलेज था, उसने उसने बारे में सोचा। ड्यूरिंग कोरोना टाइम, in spite of having all the wealth, in spite of having properties, because of that insurance or because of emotional balance, family disturbance के फैमिली में, हस्बैंड के साथ में, वाइफ के साथ में, बच्चों के साथ में, कोरोना के पीरियड में उसने गिव अप कर दिया। लाइफ की तरफ देखने का उसका नजरिया चेंज। तो बिलीव मी, these are the small things, and वो अभी नहीं है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस, और इसीलिए मैंने पर्पस बना दिया कि फाइनेंशियल इंश्योरेंस, मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम, माइंडसेट, रिलेशनशिप, प्रोफेशनल नॉलेज, इस पे कैसा काम किया। उसी दिन मैंने डिसीजन लिया कि मैं लिटरेसी लेवल पे कोरोना से लेके अभी तक बहुत से लोगों को इस बारे में बात करी। तो लेट्स अंडरस्टैंड, ये आपको कुछ डाउट्स होंगे, वो डाउट्स हम क्लियर करेंगे वन टू वन। दिस इज द शीट विच आई विल अगेन, बट व्हेन वी गो टू क्वेश्चन। तो क्या है फ्रीडम पेरेंट हाउस, क्या है? फैमिली फर्स्ट, फाइनेंशियल सेफ्टी, फ्रीडम फ्रॉम फियर, सिंपल ऑनेस्ट, स्ट्रॉन्ग पेरेंट्स बनना चाहिए, हेल्थ वेल्थ होना चाहिए, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी और स्टेटस। इस आप स्टेटस मन के करने के लिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे कर देते हो, आप स्टेटस को ज्यादा इंपॉर्टेंट देते हो और उसी हिसाब से खर्चे करते रहते। देयर इज अ टर्म कॉल्ड स्टेटस इन्वॉल्व, स्टेटस इन्फ्लेशन। उससे कम लोगों ने सुना होगा स्टेटस इन्फ्लेशन। रोड पे लेते हैं, गाड़ी दिखाते हैं, ये सब जरूरी है, पर एक पर्टिकुलर स्टेज के बाद में। So that is the reason I am requesting all of you, please work on this, and I would like to see you in this। जैसा यहाँ पे एक पिक्चर है, वो पिक्चर पे जैसा आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे आपके फोटोज है। मेरे जितने भी कम्युनिटी मेंबर हैं, वी कीप दिस एज अ फोटो, उनकी फैमिली की फोटो यहाँ पे रहती है और इसी के ऊपर वो काम करते हैं। उनके विजन बोर्ड फ्रीडम पेरेंट होप का ऐसा एक पोस्टर लगा रहेगा, और ये फैमिली का रहेगा, रोज सवेरे इस पे देखते हैं। और ये 8 एरिया पे काम, ठीक। तो दिस 8 एरिया पे अगर काम करोगे, आपके दिमाग में दूसरी चीज आएगी। दैट इज माई मिशन, दैट इज माई, एंड यू आर गोइंग टू गेट व्हाट यू आर गोइंग टू गेट इट विथ माई कम्युनिटी। ज्वाइन माई कम्युनिटी,
learn together from expert. You are also expert. Growth together and learn together. That is my motto. If you really resonate with this, I am today going to give you some offer, which is, I think, one of the best till now, which I have done till now. The best offer is understanding the responsibility, taking the responsibility, and understand what is there. Just listen this 2 minutes. इस एरिया में काम करने से stay away from the ground. अपनी लाइफ में कितने भी tell other what you need. Specifically आपने बोलना चाहिए मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या नहीं. Set bold boundaries. आपने whether it is relationship, whether it is financial or take care of your needs. You should take care of your needs and prioritize the inner peace. Rest जरूरी है लाइफ में. खुद के बारे में हमेशा सोच के heal yourself. Invest in growth. आपकी ग्रोथ क्या होना चाहिए उसके ऊपर काम करें. Stand for yourself. Take a decision. Take a responsibility. You cannot say it happens to my life because of something. It happens to my life because of this. I strongly believe whatever you are today, it is only because of the decision which you have taken in your life. वो गलत हो या सही है, आपने जो डिसीजन लिया उसकी वजह से आप यहाँ पे हो. उसमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं. और ऐसा एक सही है, टेक अ डिसीजन, डोंट वेट फॉर द राइट डिसीजन. टेक अ डिसीजन एंड मेक इट राइट. आपने जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, आपने जो भी डिसीजन लिए हैं, वो डिसीजन की खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, वेदर इट इज राइट और रॉन्ग. अगर आपने गलत डिसीजन लिया, एक्सेप्ट करो कि वो गलत. अगर आप सही डिसीजन लिया तो उसको अप्रिशिएट करो, खुद के बारे में बात करो कि मैंने ये राइट डिसीजन लिया, उसको बोलो. So this is the overall freedom, overall area which I wanted to discuss with all of you. Join my community. Today we are going to discuss on the discussion which we are till now. After that, half an hour is there. In 5 minutes, I am going to close this chapter. Those who are really interested, what we are going to learn in this 2 days webinar. 2 days webinars, one theoretical and practical as I discussed. Lifetime access, community access, you will get it. Expert guidance from me and my mentor also. I will guide, I will connect with you. Financial mindset plan क्या होता है वो सीखेंगे. Business tools क्या होती है, templates क्या है वो सीखेंगे. और इसके अलावा you will get as a bonus. You will get bonus the collaboration with the community. Skill set क्या होती है, mindset क्या होती है, tool set क्या होती है वो सीखेंगे. And create the legacy. So if you are really ready, if you think that resonate whatever I discuss with you, the cost of this overall, I am not forcing all of you. I am just requesting you to join the community so that today both of us we are going to learn it. 3,000, 3,000, 1,000, 1,000, this is overall. 3,000 is the actual price. 3,000 of lifetime access is actual price. This is overall 999. If today I am going to start the batch on 5th of 4th week of the May, believe me, this will be the time changing, life changing, and this is minimum offer which I am giving. It is not only 999, 499, it is 199. It's an 80% offer I am giving to them. And this 80% offer I am giving just for the people, those who are serious. कैसे करना है ये एक वीक के लिए अपन डिस्कस करेंगे. ये एक वीक के बाद में अपन फाइनल करेंगे क्या करना है लाइफ, और आगे के हिसाब से फिक्स करेंगे कि क्या करता है कर सकते हैं लाइफ. हाउ यू आर गोइंग टू गेट दिस,
again, I am telling you these 5 areas of working. I am going to teach. We'll discuss about it in this. In the time, this is my can. If you are really interested, if you really want to work on this is my overall offer which I am giving only 10 minutes. हेलो चैंपियंस, गुड मॉर्निंग, जो testimony वेलकम टू न्यू पॉडकास्ट सीरीज। आज हम बात करेंगे रिटायरमेंट प्लानिंग, रिटायर्ड रिच नॉट ओल्ड। ओके, सो मैं इंट्रोडक्शन कराने जा रही हूँ जितेंद्र राहुल सर का, जो रिटायरमेंट प्लानिंग एक्सपर्ट है, जो हमें आज इंसाइट्स देंगे कि कैसे हम रिटायरमेंट प्लानिंग कर सकते हैं, रिटायर्ड रिच नॉट ओल्ड। सो सर, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहूँगी कि बहुत लोगों का क्वेश्चंस होते हैं, बहुत लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि रिटायरमेंट प्लानिंग कैसे करनी चाहिए। अभी बहुत लोगों के पास पेंशन प्लानिंग तो है नहीं, क्योंकि कोई बिजनेस कर रहा है, कोई प्राइवेट जॉब कर रहा है। तो एक कॉमन मैन को रिटायरमेंट प्लानिंग कैसी करनी चाहिए, और थोड़ा सा आपके बारे में हमें जानकारी चाहिए कि आप किस तरीके से ये इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, और एज ए रिटायरमेंट प्लानिंग एक्सपर्ट आपका जर्नी कैसा रहा। थैंक यू फॉर क्वेश्चन। सबसे पहले तो रिटायर्ड प्लानिंग ये रिटायर्ड होने के बाद नहीं करना पड़ता है, रिटायर्ड होने के पहले 20-25 साल पहले प्लान करना पड़ता है, अर्ली एज में। मोस्ट द टाइम मिसकंसेप्शन है कि आपको रिटायरमेंट प्लानिंग ये रिटायर्ड होने के पहले 5-10 साल करना पड़ता है। सो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं जितेंद्र राहुल, मैं 25 साल कोक सेल्स में काम किया है और 5 साल पेप्सी में काम किया है। अभी फिर इंश्योरेंस इंडस्ट्री में ज्वाइन किया इसीलिए क्योंकि मुझे प्लानिंग करने का था, तो मेरा साइड बाय साइड प्लानिंग भी चल रहा था इंश्योरेंस का, और जॉब भी चल रहा था। तो मैंने जब स्टार्ट किया रिटायरमेंट प्लानिंग तो 20-15 साल पहले मैं स्टार्ट किया कि मुझे रिटायरमेंट अर्ली रिटायरमेंट लेना है, नंबर 1। नंबर 2, मेरी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करके मुझे कितना कॉर्पस चाहिए पर मंथ, वो मुझे प्लानिंग करना है। तो ये सब प्लानिंग करने के लिए आपको सेविंग का प्लान करना पड़ेगा कि 15-20 साल का मेरा प्लान क्या है, क्योंकि रिटायर्ड अर्ली एज होता है। फॉर एग्जांपल अगर 55 एज में आप रिटायर्ड हुए तो आपका जो 30 इयर्स का स्पैन होता है वो रिटायर्ड टाइम रहता है, तो वो पीरियड में आपको प्रॉपरली प्लान करना पड़ता है। ओके, मतलब मैं अगर 30s में हूँ तो मुझे रिटायरमेंट प्लानिंग करना शुरू करना पड़ता है। ओके सर, जैसे आपने बोला रिटायर रिच नॉट ओल्ड, तो आप ये कंसेप्ट के बारे में क्या बोलना चाहोगे? व्हाट डू यू डिफाइन रिटायर्ड रिच? रिटायर्ड रिच मीन्स बहुत से लोग जनरली प्लानिंग करते टाइम यही गलती करते हैं कि मैं ओल्ड होते जा रहा हूँ, मेरा अभी कोई आगे का रिक्वायरमेंट नहीं है, ये मिसकंसेप्शन है। तो जैसे ही मुझे ये 15 साल पहले ये प्लानिंग कर दिया था, और हम जब ग्रुप में बात करते थे तो यही प्लानिंग होता था कि मुझे किसी भी हालत में मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम नहीं करने का। तो महीने में मुझे अगर समझ लो 1.25 लाख रुपए चाहिए, तो 1.25 लाख का मुझे 30 साल के लिए प्लान करना है। तो ये अगर आप 15 साल पहले स्टार्ट करो, बहुत से प्लानिंग्स है, SIP है, रिटायरमेंट प्लानिंग है, सेविंग प्लान है, बहुत से कंसेप्ट अवेलेबल है। अगर आप स्टार्ट करोगे और वो कॉर्पस आप डेवलप करोगे, जिसकी वजह से आपको रिटायरमेंट के बाद में, मेरे बहुत से कलीग है मेरे जो साथ में जो काम करते हैं, उन्होंने हमने स्टार्टिंग में किया था तो वो अर्ली रिटायर्ड हुए, मीन्स एट द एज ऑफ 45 भी उन्होंने रिटायरमेंट का प्लान किया था जब हमने स्टार्ट किया था 30 में। तो मेन आपका एट द एज ऑफ 30 to 45, मेरा अपना मानना है कि 45 एज में आपके जो लोन्स जो मुझे डेट्स है वो सब क्लियर होना चाहिए, नंबर 1। एक दफे आपका लोन्स और डेट्स क्लियर हुए तो आपको फिर आगे के हिसाब से प्लानिंग खुद का सेविंग के लिए करना पड़ता है। तो नंबर 1 मेरी प्रायोरिटी है हेल्थ इंश्योरेंस, सेकंड है आपका जो वेल्थ एक्यूमुलेशन प्लान होता है वो सेविंग, थर्ड है आपका रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए। क्योंकि मैं अपना मानना है कि जिंदगी में 5 गोल जनरली करते हैं लोग। नंबर 1 फर्स्ट आपका चाइल्ड का एजुकेशन, सेकंड है आपका चाइल्ड का मैरिज, थर्ड है आपका वेल्थ एक्यूमुलेशन, फोर्थ है आपका जो वेल्थ एक्यूमुलेशन इन द सेंस आपको कैसे इसको बढ़ा सकते हैं, और फिफ्थ है आपका रिटायरमेंट प्लानिंग। तो इसमें प्रायोरिटी देनी है आपको रिटायरमेंट प्लानिंग, क्योंकि एक दफे जैसे मेरे बहुत से कलीग हम बोलते हैं कि 3 फेज में लोग काम करते हैं। एक करते हैं 20 साल से लेके 25 साल 30 साल मैक्सिमम, 30 साल से लेके 45 साल, 45 से लेके 60 साल। तो इसमें जो है ना तुम्हारा कंडीशन जनरली ह्यूमन क्या करता है कि जब मैं
30 से 25 हूँ हम्म तो मेरा जॉब नहीं रहता है, तो मैं जनरली ये स्टेज में रहता हूँ। मैं मांगते रहता हूँ, फादर से मांगते रहता हूँ, मदर से मांगते रहता हूँ, राइट फैमिली से रहते हूँ। राइट बाद में 30 to 45 वो एज में आप ऐसे करते रहते हैं। मीन्स आप देने देते की रहते हैं। इच्छा रखती है, आपको देने की इच्छा रखते हैं, आप देते रहते हैं लोगों को। राइट और मेरा अपना मानना है कि 45 से 60 तक आपको फिर से ऐसे ही होना चाहिए, ना कि ऐसा होना चाहिए। 100% तो सर, उसमें अगर आप प्लानिंग करोगे और ये 3 एक्शन आपके याद रखोगे तो आप प्रॉपरली प्लान कर सकते हैं। सर ग्रेट इंसाइट। Yeah. एक्चुअली मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि व्हाट आर कॉमन मिस्टेक्स जो एक कॉमन मैन करता है, लेकिन उसका भी आपने आंसर कर दिया है। सो ग्रेट। सर आपको क्या लगता है कि टैक्स स्ट्रेटेजीज क्या होना चाहिए जब हम रिटायरमेंट प्लानिंग करते हैं? टैक्स स्ट्रेटेजी में सिंपल है कि जो आज का जो ट्रेंड चल रहा है इंडिया में, हम जनरली टैक्स प्लानिंग 2-3 चीज़ों के लिए करना चाहिए। एक तो आपका हाउस जो है उसमें डिडक्शन में, स्टैंडर्ड डिडक्शन में जो आता है वो, प्लस आपका मेडिकल जो है वो जो स्टैंडर्ड डिडक्शन आता है, क्योंकि इंश्योरेंस का टैक्स प्लानिंग जो है बहुत कनेक्टेड है। अगर आप लॉन्ग टर्म बेसिस पे कुछ करना चाहते हो, प्रॉपर्टी लेना चाहते हो, तो जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है टैक्स में, वो टैक्स के अलावा भी आपका ऊपर होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरा लिमिट है 1.5 लाख का, 5 लाख का स्टैंडर्ड, उसके बाद में मैं करूंगा। तो उसका प्लानिंग आपका होना चाहिए कि टैक्स के अलावा भी आपका सेविंग होना चाहिए, राइट जो कि आपको हेल्प करेगा रिटायरमेंट के बाद में। या राइट। सर हाउ डू यू प्लान for potential retirement risks such as inflation, market downturns and unexpected health expenses? वेरी गुड क्वेश्चन। और ये सब मिसकंसेप्शन है कि मैं अगर एफडी कर दिया, जनरली ट्रेंड क्या होता है कि मैं एफडी कर दिया तो मुझे एफडी का रिटर्न आता है, मैं प्रॉपर्टी अगर ले लिया तो मुझे उसका रेंट आ जाएगा। और बहुत से लोग बोलते हैं कि मैं अगर कहीं पे जगह ले लूं और वो जगह में अगर प्रॉपरली इन्वेस्ट करते जाऊं तो मुझे उसका कुछ तो भी एप्रिसिएशन आएगा। राइट तो नंबर 1 एफडी जो है, एफडी का रिटर्न मैक्सिमम 7% के ऊपर नहीं आता है, राइट जो कि अगर करंट इन्फ्लेशन रेट देखा जाए तो वो मैच नहीं होता है, राइट विच इज सेफेस्ट। कोई एक लिमिट तक उसको एफडी का इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सेकंड है, आप प्रॉपर्टीज लेते हो और प्रॉपर्टीज में जनरली अगर रिटर्न्स आप देखा जाए रेंट का रेट तो 4% के ऊपर नहीं है। राइट अगर अब 1 करोड़ का भी मैं अगर प्रॉपर्टी ली तो उसका 4% के हिसाब से रिटर्न आता है, विच इज नॉट गुड। एंड मेरा अपना मानना है, अभी जनरली मैं जब यंग लोगों से बात करता हूँ तो उनका कंसेप्ट होता है कि मैं प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट नहीं करूँ, मैं रेंट से लूँ, और जो मेरे कैपेसिटी है 2 करोड़ का, 3 करोड़ का, मैं वेल्थ एक्यूमुलेशन में डालूं, राइट ताकि उसका जो मुझे रिटर्न आएगा वो लॉन्ग टर्म बेसिस पे आएगा। 100% हो सकता है मेरा रेंट भी उसमें से निकल जाए। राइट अगर 5 लाख का, अगर आप 5 करोड़ का अगर आप इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी रखते हो Right. और उसका अगर 10% भी पकड़ते हो तो उसमें रेंट आराम से निकल जाता है। राइट तो ये सब कंसिडर करके मेरे पास अपना एक प्लानिंग है, जिसकी वजह से आप अगर मुझे अप्रोच करते हैं और आप बताते हो कि मुझे प्लानिंग क्या करना है, तो मेरे पास एक फॉर्मेट है। वो फॉर्मेट में आपके एसेट डालो, आपके लायबिलिटी डालो और आपका गोल डालो कि आपको क्या अचीव करना है लाइफ में। राइट अगर आप इस प्लानिंग से करोगे तो मेरे पास में है कि शॉर्ट टर्म बेसिस पे कौन से पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करना है, राइट लॉन्ग टर्म बेसिस पे प्लान करना है तो कौन से। So this is overall from my side, all the members, those who are present now. I can say that thank you for listening, on a patiently listening all the people those who are till now. If you have any questions, I think everybody must be having some questions. So I need to address it on one-to-one so that you will also get some clarity about what it's about. And if possible, if you have joined me in my community, definitely we are going to do one-to-one. So let's raise your hand so that I can also the question answer also. Anybody is having any question or any comments you want to the comment, if you want to give suggestions, what you think is the right way to balance your wealth and balance your well-being also, or if you think that this is also going to resonate in you, you want to work on the multiple sources of income, you want to work on your mindset, you want to work on your
overall well-being areas of 8 areas of life. Definitely, it is going to help all of us to get the wealth. And I am on the mission. I am on the mission to help all the parents, all age parents, whether it is junior, senior, or any type. I am going to help these people on this area so that people at least enjoy their wealth also and well-being. That is my motto. And again, if you have, you can connect me on my mobile so that you can get it. Okay. So anybody wants to say something, or we can end up this meeting. Thank you for listening this. If you have any question, you can definitely connect me on my phone number, which is there. Thank you, Prabhu sir, for joining. Thank you, Rangan sir. Thank you, Anita ma'am, for wonderful joining and this trusting for last. Thank you, sir. Thank you very much. I think we can end this session. And if you want anything, you can connect me one-to-one. Thank you for supporting me, and thank you for connecting today's session. Thank you. God bless you. See you. Together we can grow, as my motto is there. Together we can understand each other. Together as a person, we will enjoy the life till now. Thank you. God bless you. Thank you.